there. Good evening, everyone. It's a pleasure to welcome you all for the 30-hour certificate course on drafting pleading, organized by FIMT School of Law. Today we have with us our esteemed speaker, Tausif Ahmed Dar, for module on petitions under constitutional law and pleadings in Supreme Court. He is an advocate on record in Supreme Court of India. He has done his LLM with specialization in corporate law. His experience as an advocate is in all judicial setups of India, constantly focused on resolving complex and challenging legal issues and always looking for ways to improve and evolve easy justice and accessible processes. He has been part of Triple Talaq case, Barbary Masjid case, and LGBT cases. I welcome you, sir, in today's lecture. Sir, you can start now. Okay, all right. Okay, all right. Good evening to everyone. So, respected ma'am, and if there is Dr. Swati, with respect to her and their colleagues. So, let us start today's session. So, we are going to briefly discuss the pleadings before Honorable Supreme Court of India. ये पूरा टॉपिक जो है ना, ये बहुत बड़ा है, लेकिन जो मेन एरियाज हैं इसमें उसको हम कवर कर लेंगे, because we understand that before Honorable Supreme Court there are a lot of jurisdictions, so there are a lot to draft, a lot to plead, and a lot to submit before the court. See, briefly, I think I will divide it into three segments. The firstly is that I will discuss the jurisdiction of the Supreme Court. That will be the first part, because with the help of jurisdiction before the Supreme Court, we can understand what type of pleadings we are going to submit before the Supreme Court. That is the first thing. Second thing is that who will be the person and what would be the requisite qualifications for a person to submit those pleadings. And third will be the structure of the pleadings. जो हमारे पास pleadings हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. So these are the three headings that we will discuss. और फिर इसके आगे, if we have time, we can discuss other things as well. So the first thing is that we will discuss that the jurisdiction area of Honorable Supreme Court of India. कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हम कौन कौन सी केसेस ले सकते हैं. अच्छा, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें, सो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा, प्लीज बी फ्री टू डिस्कस, फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि बस आपको सुनना ही सुनना है. सो जस्ट फील फ्री टू आस्क व्हेनेवर देयर इज एनी क्वेश्चन. सो सबसे पहला जो टॉपिक, पहला जो सेगमेंट है, दैट इज द jurisdictional part of the Honorable Supreme Court of India. Now we remember and we understand that the Supreme Court is the apex court of India. It is the last resort in our country in terms of interpretation of law. So सबसे पहला jurisdiction जो हम discuss करते हैं, that is the original jurisdiction of the Honorable Supreme Court of India. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जैसे हमारे पास आर्टिकल 32 में जब हम रिट पिटिशन फाइल करते हैं, कोई भी रिट है आउट ऑफ 5 रिट्स, तो डायरेक्टली बिफोर सुप्रीम कोर्ट ही फाइल करते हैं. रिट्स आपने खुद पढ़ा होगा और रिट्स आपने डिस्कस भी किया होगा. सो वी विल नॉट डिस्कस द इनर्स एंड आउटर्स, द मैट्रिक्स ऑफ द रिट्स क्या होती हैं. सो आई अंडरस्टैंड कि यू नो द रिट्स हैं, एंड अंडर आर्टिकल 32 वी आर बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. लाइकवाइज हमारे पास 226 आर्टिकल में हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं. सो द फर्स्ट जब हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, द फर्स्ट वन इज द रिट पिटिशन. रिट पिटिशन जहां पे जब भी हमें कोई भी फंडामेंटल राइट, हमें लगे कि कोई भी फंडामेंटल राइट हमसे कहीं भी इन्फ्रिंज हो रहा है, हम डायरेक्टली रिट कर सकते हैं फाइल बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. We can also file before the High Court, but 32 is also open with us. So the first thing is that writ jurisdiction. That is the first thing, कि हम writ file कर सकते हैं. Second होता है कि अगर सेंटर और जैसे प्राइवेट दो इंडिविजुअल्स में कोई डिस्प्यूट है,
सिमिलरली कभी क्या होता है कि दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है या सेंटर एंड स्टेट का कोई डिस्प्यूट है, आर्टिकल 131 उसको एड्रेस करता है। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स या स्टेट वर्सेस सेंटर। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली, अभी लास्ट मंथ में जनवरी में आपने देखा होगा कि केरला स्टेट ने कहा कि सेंटर गवर्नमेंट हमें फंड्स प्रॉपरली एलोकेट नहीं करती। सो इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर या स्टेट वर्सेस स्टेट या यूनियन टेरिटरी वर्सेस स्टेट या यूनियन टेरिटरी वर्सेस सेंटर, सो इट विल अगेन कम बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसको हम ओरिजिनल सूट कहते हैं बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज also the original jurisdiction which is before the honorable supreme court। तीसरी एक jurisdiction होती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको हम कहते हैं एडवाइजरी jurisdiction। आपने सुना होगा ये एडवाइजरी jurisdiction भी 143 आर्टिकल में, कि व्हेन जब हमारे प्रेसिडेंट को किसी भी चीज पे कोई डिस्प्यूटेड, कोई डाउटफुल इंटरप्रिटेशन दिखती है या उसको क्लैरिटी नहीं मिलती है किसी पर्टिकुलर चीज को, and when I say president, president means that which is always working on the aid and advice of cabinet। वो हम सब समझते हैं how the president is working। So advisory jurisdiction is also before the honorable supreme court। Then there is another jurisdiction that is called the transfer petitions। मान के चलो एक मैटर चल रहा है केरला में और दूसरा मैटर चल रहा है किसी और स्टेट में, पंजाब में। जनरली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर केस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम ट्रांसफर करें। एक हाई कोर्ट एक स्टेट के मैटर्स ही देख सकता है, वो किसी मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वो क्या करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आर्टिकल 139A में हम उसको कहते हैं ट्रांसफर पिटिशन। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर पिटिशनर्स we can take the cases from one state to another state। So this is called the transfer petitions। ये भी ओरिजिनल में ही आता है, मतलब this is also part of the jurisdiction that is exercised by the honorable supreme court। apart from that, एक सबसे बड़ी jurisdiction जो है वो होती है कि आपने सुना होगा जनरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी jurisdiction जब एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट करता है, डिस्क्रिशनरी jurisdiction जिसको हम कहते हैं कि स्पेशल लीव पिटिशंस। जब भी हम हाई कोर्ट में कोई भी ऑर्डर लेते हैं, चाहे इन फेवर और अगेंस्ट, क्रिमिनल हो, सिविल हो, आर्बिट्रेशन में हो, it may be in the matrimonial dispute, whatever be the dispute, whatever be the cause, whatever be the matter, finally if a judgment or order or decree is rendered by the high court, जितने हमारे हाई कोर्ट से, इसके बाद ये चैलेंज कहाँ पे होता है, बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उस प्रोसेस ऑफ चैलेंज जो है ना, उसको हम कहते हैं बाय वे ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन हम इसको कहते हैं, आर्टिकल 136 में कहते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, दिस कम्स अंडर दिस 136 आर्टिकल। ये कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो इस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं। बिसाइड्स दैट सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू जुरिस्डिक्शन होती है और क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन होती है। अब हमने जितने ये जुरिस्डिक्शन डिस्कस की है ना, फॉर एग्जांपल रिट जुरिस्डिक्शन, तो रिट जुरिस्डिक्शन का बनता है रिट पिटिशन, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस फाइनली द ड्राफ्टिंग बैक। सिमिलरली फॉर एग्जांपल देयर इज ओरिजिनल सूट, सो ये ओरिजिनल सूट पिटिशन बन जाएगा। if we are discussing the special leave petition that I mentioned under 136, we just come before the Supreme Court, so that will be the special leave petition, SLP। और मेजरली मैक्सिमम पिटिशन जो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने देखोगे ना, वही SLP वाले ही होते हैं, मैक्सिमम पिटिशंस। apart from there will be the transfer petitions, apart from there will be the advisory jurisdiction petitions, apart from there will be the review petitions and curative petitions। review petition you understand, रिव्यू मतलब हमारे पास कोई जजमेंट आती है तो हम उसको फिर से एक बार रिव्यू करना चाहते हैं बिफोर द सेम कोर्ट या बिफोर द सेम बेंच, रिव्यू। और लास्ट वाला वो क्यूरेटिव। क्यूरेटिव पिटिशन इज द फाइनल थिंग,
That is the final opportunity that we may have, that we can have access to the justice. But in constitution, you will understand each and everything. So we'll just limit ourselves to the pleading part. So ये jurisdiction थी. अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो है कि ये जो प्लीडिंग है, अब हमने केसेस देखे, रिट का केस बनेगा, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, अब ट्रांसफर का केस बनेगा, अब एसएलपी बन जाएगा, अब कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का केस बन जाएगा, या बिटवीन द टू स्टेट्स कोई ओरिजिनल सूट बन जाएगा. अब इस केस को हमें फाइल करना है बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सो अब ये प्लीडिंग जो है, ये जो हमारे पास सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो पिटिशन है, मतलब हम यूज करते हैं पिटिशन, मतलब पर्सन जो फाइल करता है उसको हम पिटिशनर कहते हैं. जैसे अगर सिविल सूट हमारे ट्रायल कोर्ट में होता है ना, एक साइड से प्लेंटिफ होता है जो सूट को फाइल करता है, एंड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड देयर इज अ डिफेंडेंट, ठीक है ना. बट व्हेन यू आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जो में मैटर फाइल करता है वो पिटिशनर बनता है, और जो उसके ऑपोजिट साइड में जो रिप्लाई करते हैं, द ऑपोजिट पार्टी, दैट इज कॉल्ड द रेस्पोंडेंट्स. सो यहाँ पर जब ये पिटिशन फाइल होगा, उस पिटिशन को फाइल करने के लिए जो भी एडवोकेट्स होते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ एडवोकेट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी फाइलिंग होती है, सारी फाइलिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फाइल करना है. मतलब एक तो होते हैं एडवोकेट, हमारे पास जनरली जब हम देखते हैं ना एडवोकेट्स, हमारे पास होती है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अलग से. हमारे इंडिया में है जो हमारे इस प्रोफेशन के साथ डील करते हैं, उसको एडवोकेट्स एक्ट 1961 आपने पढ़ा होगा. वो हमारे इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक कंट्री का अलग अलग सिस्टम है ना. जैसे यूके का सिस्टम है, उनके सॉलिसिटर्स अलग होते हैं, उनके अटॉर्नीज अलग होते हैं. हमारे इंडिया में क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो सॉलिसिटर्स हैं. हमारे इंडिया में है सिर्फ एडवोकेट. एडवोकेट मतलब ए पर्सन who is enrolled under Advocates Act 1961 before a particular state bar council. ये एडवोकेट होता है. और एडवोकेट जब रजिस्टर होता है तो पूरे इंडिया में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम क्या है, यहाँ पे एक अलग कैटेगरीज होती हैं, एक पर्टिकुलर प्रिविलेज सेट ऑफ, मतलब पीपल होते हैं जो एक पर्टिकुलर एग्जाम पास करते हैं आफ्टर 5 years ऑफ प्रैक्टिस. एक 5 ईयर का प्रैक्टिस हो, मतलब 4 ईयर का प्रैक्टिस होता है, और 1 साल की एक ट्रेनिंग पीरियड होता है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक एग्जाम होता है, हर साल होता है जून में. जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं. सिर्फ यही वाले लोग जो हैं वो प्लीडिंग्स फाइल करते हैं बिफोर द कोर्ट. मतलब इट इज नॉट एवरीवन. फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉयर, देयर इज एन एडवोकेट. अच्छा, बाय द वे मेरे मुंह से निकल गया वर्ड लॉयर. हमारे मतलब ये ऑलमोस्ट साइनोनिमसली यूज करते हैं वर्ड्स. लेकिन जनरली ना, मतलब हम कॉमन लॉ लैंग्वेज में जब हम लॉयर यूज करते हैं ना वर्ड, लॉयर इज नॉट इम्पोर्टेंटली वो पर्सन जिसने अपने आप को बार काउंसिल में एनरोल किया होगा. मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमूविंग द कंफ्यूजन, एक है एडवोकेट. एडवोकेट वुड बी अ पर्सन जिसने एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंडर एनरोल किया, पॉइंट वन करेक्ट. और सेकंड, जिसने बार काउंसिल में, हर एक स्टेट का बार काउंसिल है, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करा दे. सो ए पर्सन एनरोल्ड एज ए एडवोकेट विथ स्टेट बार काउंसिल इज एडवोकेट, ठीक है ना, इस पर एडवोकेट एक्ट 1961. सेकंड, जो हम ये लूजली लॉयर यूज करते हैं ना टर्म, ये जनरली हम उसको सिग्निफाई करते हैं, उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं जो उसने भी लॉ किया होता है, उसने भी 3 साल 5 साल पढ़ाई की होती है, लेकिन हाँ शायद उसने बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं किया होता है. वो डिफरेंस होती है. नाउ एनीवे, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. एक ग्रुप होता है, एक एडवोकेट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यही केस फाइल कर सकते हैं. मतलब इन्हीं से ही, ये प्रॉपरली ट्रेन पीपल होते हैं. दे नो ड्राफ्टिंग, दे नो हाउ टू एड्रेस द कोर्ट, दे नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्लीडिंग्स. ये ही कोर्ट में फाइल कर सकते हैं. सो आपको याद रखना है कि इट इज नॉट एवरी एडवोकेट हु कैन come and file the cases before the Honorable Supreme Court. Now, the third important thing is about the drafting part, pleadings part. Now, इस drafting में ना हम दो let's take दो, पहले हम
पिटिशन डिस्कस करेंगे और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे स्पेशल लीव पिटिशन, SLP। देखो, ड्राफ्टिंग में ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब जनरल ड्राफ्टिंग में बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। ड्राफ्टिंग में दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, वन इज द फैक्चुअल मैट्रिक्स, फैक्ट्स क्या है, फैक्चुअल मैट्रिक्स। सेकंड होता है लीगल मैट्रिक्स। लेट अस कंपार्टाइज द प्लीडिंग्स into two dices. One is facts, पर्टिकुलरली कोई भी मैटर है, कोई भी केस है, इसके क्या फैक्ट्स हैं, कहानी क्या है। सेकंड जो होता है वो होता है लीगल मैट्रिक्स, लीगल प्रपोजिशंस, लीगल कंटेंशंस, हम लॉ को किस तरह अप्लाई करेंगे। तो जब हम रिट पिटिशन की एग्जांपल में देता हूं, रिट पिटिशन में क्या हम तीन उसको डिवाइड करते हैं। रिट पिटिशन, I will share, I think, the writ petition and SLP with Dr. Swati. She will later on share it with you. So, writ petition जब हम डिस्कस करते हैं, अच्छा एक चीज मैं बताऊंगा, there is a difference between generally drafting। देखो, एक होती है normal drafting। For example, drafting means simply that how you are writing things, how you are making it precisely, making it comprehensive, so that it is understood to the person who is reading it. For example, you are appearing in an exam, that is again drafting. Somebody is asking you a particular question, you are answering to that particular question, that is a drafting, answering a question. Similarly, when we are drafting for the court, it is again that we want to convince something, that what is in our head. But the difference क्या होती है legal drafting and जो normal drafting है? See, before we will go to the writ drafting, there is a point that there is a difference of drafting. One is the general drafting. See, for example, you have to write a letter to someone, you have to write answer to someone, you have to communicate to someone. That is also a drafting. But what is separately different is the legal drafting. And since we are lawyers, lawyers are deemed to be the best draftsmen in the world. मतलब जैसे हर एक का लिखने का एक अंदाज होता है ना, but lawyers are deemed to be the best draftsmen. In fact, आप बहुत बड़े बड़े जो बुक्स देखोगे ना, अगर एक नॉर्मल पर्सन लिखता है, यू अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट वे, बट इफ थिंग्स आर रिटन बाय एनी लॉ नोइंग पर्सन, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। सिंपल ड्राफ्टिंग में यू आर नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल ऑफ द dispute. But when you are into the legal drafting, you have to be very conscious. Drafting must be very simple, it must be very concrete, it must be very precise, it must be crystallizing in such a way so that it can comprehend and then convince the other person. देखो, ड्राफ्टिंग का एक ही पर्पस है। What is the purpose of finding good drafting? It is just to convince the judge. हम जज को कन्विंस कर रहे हैं, हम जज के सामने प्रॉपरली हर चीज रखते हैं, एवरीथिंग। So, जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं ना, सुप्रीम कोर्ट इज ऑब्वियसली द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। सो व्हेन वी आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सो फर्स्ट चीज है रिट पिटिशन। अच्छा, इस रिट पिटिशन में ना हम और एक चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज PIL, रिट पिटिशन एंड PIL। क्योंकि बहुत सारे अभी PILs आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, मतलब PIL भी रिट ही जैसी होती है, बिकॉज PIL इज आल्सो फाइल्ड अंडर 32। वी आर फाइलिंग द रिट under 32, PIL is also filed under 32. So it is just improved version of the writ. It is again writ. Every PIL comes under the writ jurisdiction. So we will discuss the both. So जब हम writ petition के लिए फाइल करेंगे, take example of any writ petition. आप कोई भी writ petition ले लो, recently हमारे आपने देखा वो हमारे पास ये पॉलिटिकली इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का आपने मैटर सुना होगा ना। Yes, sir. हाँ, या कोई भी एग्जाम्पल दे दो किसी भी रिट पिटिशन का। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी रिट पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल, हेबियस कॉर्पस रिट पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंडेमस। मैंडेमस मतलब हमारे पास कोई स्टेट एजेंसी है, स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटी है,
स्टेट का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। रिट पिटिशन हम कब फाइल करते हैं? वी फाइल रिट पिटिशंस जब कोई स्टेट का कोई इंस्ट्रूमेंटेलिटी, स्टेट का कोई एजेंसी, स्टेट का कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, तब हम रिट फाइल करते हैं, क्योंकि रिट हम हमेशा स्टेट के ही खिलाफ फाइल करते हैं। अगर कोई पर्सन, कोई मतलब प्राइवेट पर्सन है, फिर तो हम कोई एफआईआर करा देंगे। रिट मीन्स दैट दे हैव टू फाइल इट अगेंस्ट द स्टेट। If state is not working properly, if state there is a deficiency in the services of the state agency, department, instrumentalities, तो हम रिट फाइल करते हैं। तो रिट जब हम फाइल करते हैं, टेक एग्जांपल ऑफ एनी रिट। फॉर एग्जांपल हम टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ। हम रिट कोई फाइल करेंगे और इस रिट में हम बताएंगे कोई भी इशू आप ले लो जो रिसेंटली आपको समझ आ रहा है। मैं एग्जांपल दे दो एक रिट का जो हम फाइल कर सकते हैं, मतलब समझाने के लिए। अगर जैसे हम मतलब बहुत सारे स्टेट्स में, मैं तो यूपी के एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने देखा यूपी के जब हम जाते हैं ना, वहां पे बसेस में ना बहुत ओवरलोड होता है। जैसे आपने ना मूवीज में भी देखा होगा, लोग ट्रेन के ऊपर छतों पे चढ़ते हैं। वो कहीं से आपको सेफ दिख रहा है? वो प्रॉपरली अनसेफ है। जिस ऑटो में 3 बंदे बैठने चाहिए ना, उस ऑटो में 5-5 बंदे बैठते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि पब्लिक हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कंसर्न गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए? मतलब डोंट यू थिंक दैट वी हैव फंडामेंटल राइट टू लाइफ? और राइट टू लाइफ क्या वही है जिस ऑटो में 3 बंदे होने चाहिए उसमें 10 बैठते हैं? जिस बस में अंदर लोग होने चाहिए ना, उसके छत पे बैठते हैं। मतलब टेक इन एग्जाम्पल, हम एक रिट फाइल कर रहे हैं इस पे, इन द नेम ऑफ पीआईएल। हम पीआईएल एक फाइल कर रहे हैं या रिट फाइल कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, रिट ना हम तीन तीन मतलब इनमें हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वी जस्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन एक होता है जिसमें हम फैक्चुअल मतलब कहानी होती है फैक्ट्स की, ठीक है। सेकंड होता है लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। और थर्ड वन होता है ग्राउंड, मतलब रीजन जो है ना, हर एक रेट का अलग अलग एक मतलब होता है बेस, अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं। लेकिन अब हम अगर जनरली टेक एन एग्जांपल के, हम एक ऐसा रेट ले रहे हैं कि जहां पे हम कह रहे हैं कोर्ट से कि हम यूपी में रहते हैं और यूपी में बहुत ज्यादा क्राउड है। क्राउड इन द सेंस जो बसेस पे होता है या ट्रेन पे होता है या ऑटो में, जहाँ पे 3 की जगह होती है वहां 5-5 होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला हमें देखना है हम ये किसके खिलाफ फाइल करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी? हाँ, आई अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट थिंग इज कि हम देखेंगे हम ये किसके खिलाफ फाइल करेंगे। तो अगर हमें एक रिट फाइल करना है जिसमें हमें बोलना, पीआईएल फाइल करना है जिसमें हमें बोलना है कि इतना ज्यादा क्राउड होता है या इतना ज्यादा मतलब ओवरलोडिंग होती है बसेस में, या इनफैक्ट आई हैव आल्सो सीन द ट्रेन्स व्हिच आर टू मच ओवरलोडेड, पीपल जंप फ्रॉम द टॉप। तो उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं। मतलब इट इज नॉट जस्ट कंसर्न की ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान चली जाती है। और ये सिर्फ उस गाड़ी का नहीं है कि जो चलती है ओवरलोडिंग के साथ, जो अगल बगल गाड़ी चलती है ना, मतलब मान के चलो कोई बाइक पे जा रहे हैं, कोई किसी और गाड़ी में जाते हैं, दे आर आल्सो अफेक्टेड बाय ऑल दिस। So take an example that we are filing a writ, we are filing a PIL saying that इसको किसी भी तरह एड्रेस किया जाए। So the first thing is that we are going to fix the parties। हम किस किस के खिलाफ ये फाइल कर रहे हैं। तो पहला होगा यूपी गवर्नमेंट, बिकॉज यूपी का ट्रांसपोर्ट किसके अंडर आता है? स्टेट के अंडर आता है। मतलब जनरली ये होता है ना कि यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन चलाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जो बसेस हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो लोकल करियर गाड़ियां हैं, वो स्टेट के अंदर आती हैं। जैसे हमारे दिल्ली का अपना है डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, या मतलब दिल्ली अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो चलाती है।
सिमिलरली यूपी का अपना एक सिस्टम है जो वहां पे गाड़ियों को देखता है, मतलब अपने लॉज से वो चलाते हैं सिस्टम को। या अगर ट्रेन है, ये सिर्फ सेंटर का डोमेन है। किसी स्टेट की अपनी ट्रेन चलती है नहीं, क्योंकि वो स्टेट का है ही नहीं। मे बी अगर स्टेट का होता तो बेटर होता, लेकिन ये सेंटर के पास ही है, तो एक ही सेंटर ही देखता है पूरे सिस्टम को। इनफैक्ट अगर आपको पता है तो पिछले साल से पहले ना एक उसका अलग बजट होता था, रेलवे का अलग बजट होता है, बट दिस एनडीए सेकंड ने उसको अब जनरल बजट के साथ ही रखा है। So we are before the court. So we are going to file a petition. So what is the petition? Petition is that there is overcrowding in the buses, in the vehicles, in each and every car, every carrier, every transport, जो भी vehicle होता है in the UP. So first thing is that we have to decide the parties. पार्टी होगी यूपी की सरकार। उसके बाद जो सेकंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होगा वो होगा सेकंड, और तीसरा होगा पुलिस। मतलब ये मैं हाइपोथेटिकली सारा सिस्टम, मतलब पूरी एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे ही जाते हैं आगे। सो ये हम पहले पार्टीज बना देंगे, पार्टीज डिसाइड करेंगे कि इसमें ये पार्टी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से लोग हैं जो इसको फाइल करना चाहते हैं। मतलब ऐसा भी होता है ना कि बहुत बार हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कुछ लोग ऐसे फाइल करते हैं अपना नाम कमाने के लिए, हाँ, जिसको कहते हैं पीआईएल, हाँ, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। देयर इज देयर इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड सेकंड इज पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो वो पीआईएल भी बहुत सारे लोग फाइल करते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब बस अपना नाम कमाने के लिए, हाँ बस नाम हमारा चल रहा है भाई, इसने बस पीआईएल फाइल किया, सरकार भी डरेगी। हाँ, तो सेकंडली क्या है, हमें पार्टीज देखनी है। पार्टी बोनाफाइडी होना चाहिए, पार्टी सच में उसका पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, पार्टी सीरियसली, मतलब हु इज वर्किंग फॉर द पब्लिक, हु इज इन द पब्लिक डोमेन, हु हैज अ रियल कंसर्न, हु इज रियली मतलब लुकिंग फॉरवर्ड सो दैट समथिंग इज हिंडरिंग द दिस डेवलपमेंट, समथिंग इज हिंडरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जिसको लगे कि हाँ सीरियस कंसर्न है, रादर देन वो देखे कि मेरा क्या होगा। सो सेकंड थिंग इज दैट वी विल सी कि कौन लोग हैं, कौन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन भी फाइल कर सकती है। सो इट इज नॉट ऑलवेज कि एक प्राइवेट पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है, दे कैन ऑल्सो फाइल इट। सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी विल फाइंड कि कौन सा पार्टी हमें लेनी है, ठीक है ना। नो, उसके बाद क्या है हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमें ये देखना है कि जो कौन कौन सा फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट हो रहा है, ठीक है। हमें देखना है कौन कौन सा फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी की एग्जाम्पल देंगे तो हम बोलेंगे आर्टिकल 21 हमारा है, ठीक है। हम बोलेंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। लाइफ इसी को कहते हैं जिसमें हमारी लाइफ डेंजर में है। हम बोलेंगे लिबर्टी इसी को कहते हैं जिसमें हमारी जिंदगी, ये फ्रीडम इसी को कहते हैं जिसमें तो पता भी नहीं है। मतलब आप ना, ये सीरियसली मैं कह रहा हूँ आपको, दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू, वी कैन डिस्कस एनी एग्जांपल बट आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल। आप देख लेना, जिस ऑटो में 3 लोगों को बैठना है ना, वहां 7 बैठते हैं। एंड सी, मतलब गो टू गाजियाबाद, to the surroundings. Similarly, a lot of places throughout the country, I'm saying this is not just example of UP, but there are a lot of things going like this. So what we are saying is कि उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से fundamental rights हमारे हो रहे हैं infringe. We will say obviously life. We will say the liberty is there. We will say public health. Public health is also in danger. It is not just one individual. एक इंसान थोड़ी है, एक बस में एक ड्राइवर के साथ पता नहीं कितने लोग फिर गिर जाते हैं। रिसेंटली देयर वाज वन एक्सीडेंट हिमाचल में हुआ था, उसमें पता नहीं 34% दे जस्ट डाइड बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग की वजह से। सो देन वी विल से कौन कौन सा फंडामेंटल राइट हमारे पास है जो वायलेट हो रहा है, ठीक है ना। और हम प्रॉपरली उसमें मतलब कैटेगराइज करेंगे, ये हमारे फ्रीडम को हिट करता है, ये हमारी लिबर्टी को हिट करता है,
ये पब्लिक हेल्थ को हिट करता है, ठीक है ना। सो देन वी विल गो इनटू दिस। देन आफ्टरवर्ड जो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें देखना है कि इस पे कौन कौन सा लॉ ऑलरेडी बना हुआ है। मतलब ऐसा होता है ना कि हर एक जो भी आप मुद्दा उठाओगे ना उस पे ऑलरेडी बैकग्राउंड में कोई ना कोई लॉ होता है। देयर मस्ट बी अ लॉ, देयर मस्ट बी मोटर व्हीकल एक्ट, देयर मस्ट बी द मोटर व्हीकल रूल्स दैट विल से कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। सो वी विल सी दैट हाउ दोज रूल्स आर इफेक्टिव इन नेचर, हाउ रियली जो सरकार है या सरकार की जो गवर्नमेंट है या पुलिस है उसको कितना सीरियसली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब कभी ये भी होता है कि रूल्स हैं, लॉ है, लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है। यू विल ऑल्सो फाइंड आउट, मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज देखोगे ग्रे एरियाज, लॉ होता है लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है। मतलब जैसे एग्जांपल दो, पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग आप नहीं कर सकते हो, ये लॉ है। अब मुझे बताओ इंडिया में कहाँ फॉलो होता है? लॉ इज पब्लिक प्लेस पे आप नहीं कर सकते हो। कोर्ट में लोग तो कोर्ट में सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं। लॉ है हमारे कंट्री में, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं बट दे आर नॉट इफेक्टिव, वो एनफोर्स ही नहीं होते हैं। या पुलिस वाले खुद थाने में स्मोकिंग करते हैं। मतलब हर एक ने देखा होगा, दिस इज नॉट समथिंग आई एम सेइंग न्यू, बट दीज आर द फैक्चुअल थिंग्स। तो मतलब फिर हम देखते हैं कि उस स्टेट में, फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन द यूपी, फिर हम देखते हैं स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट लॉज, वी विल सी मोटर व्हीकल लॉज, वी विल सी द रूल्स, राइट लेफ्ट एंड सेंटर, कौन से रूल्स हैं, कितने इफेक्टिव हैं वो, और उसमें क्या क्या लेक्यूनाज हैं। उसके बाद देन आफ्टरवर्ड्स वी विल आल्सो फाइंड स्टैटिस्टिकल, जो भी हमारे पास कोई डेटा होगा, डेटा कलेक्शन होता है, क्योंकि आपको ना बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास डेटा होता है कि इस साल में इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें ना लिखा होता है ये एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं। यू विल फाइंड आउट मेजॉरिटी एक्सीडेंट्स वहां लिखे हुए ओवरलोडिंग की वजह से होते हैं। गाड़ी की कैपेसिटी होती है 50, उसमें होते हैं 100। मतलब जब इंसान, आप देखो जब इंजीनियर कोई गाड़ी बनाएगा वो कैपेसिटी के हिसाब से बना देगा। वो बैटरी रिक्शा होता है, उसमें पता नहीं 4 की कैपेसिटी है या कितने की, उसमें पता नहीं कितने होते हैं, और फिर वो उल्टा कहीं पे भी हो जाता है। सो ये रियल इश्यूज हैं। सो देन वी विल सी दैट दोज लॉज आर इनइफेक्टिव इवन इफ देर आर इफेक्टिव। बिकॉज आपको याद रखना चाहिए जब लॉज इनइफेक्टिव होते हैं ना, फिर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस भी दे सकता है, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान था। सो व्हेन देयर इज अ वैक्यूम, और व्हेन द लॉज आर इनइफेक्टिव, और व्हेन देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट रियली हेल्पिंग आउट, कभी ये भी होता है ना कि लॉज मतलब हेल्प ही नहीं कर पाते हैं एक आम सिटीजन को। सो फाइनली सी वी आर लिविंग इन अ वेलफेयर स्टेट, एंड इन द वेलफेयर स्टेट व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, दैट इज अ सिटीजन, welfare of a citizen. Welfare of the citizen is the utmost thing. That is the ulterior motive behind each and everything that the state is doing. So हम फाइनली ये देखते हैं कि वेलफेयर स्टेट में फाइनली एक सिटीजन का क्या ही कितना ही फायदा हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती हैं कि कौन सी रेमेडीज हम चाहते हैं। मतलब जब हम ग्राउंड्स में आते हैं ना, जब हम ये चीजें डिस्कस करते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज दैट रेमेडीज दैट वी आर आस्किंग, व्हाट आर द रेमेडीज। ये जो हम पिटिशन फाइल कर रहे हैं, चाहे रिट फाइल कर रहे हैं, चाहे ट्रांसफर पिटिशन फाइल कर रहे हैं, चाहे ओरिजिनल सूट फाइल करते हैं, सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी आर जनरली आस्किंग कि व्हाट आर द रेमेडीज दैट वी आर सीकिंग। रेमेडीज, हर एक पिटिशन के अलग अलग रेमेडीज होते हैं। मतलब व्हाट आर यू फाइनली सीकिंग फॉर, आपकी प्रेयर क्या है, मतलब वो रेमेडीज में हम ये बताते हैं कि हम चाहते क्या है। और एक चीज आपको याद रखना चाहिए, मतलब जब भी हम किसी रिट पिटिशन के ग्राउंड्स पे आते हैं ना, मतलब जैसे मैंने आपको कहा जनरली चाहे एसएलपी हो या रिट पिटिशन हो, उसमें पहले हम एक प्रॉपर सिनॉप्सिस में जाते हैं, सिनॉप्सिस में फिर उसके बाद फैक्ट्स होते हैं, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। आई विल शेयर, आई थिंक एक दो सेट में शेयर करूंगा विद डॉक्टर स्वाति, शी विल फाइनली शेयर विद यू। एंड फाइनली थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होता है ग्राउंड्स। मतलब व्हाट आर द ग्राउंड्स, व्हाट आर द रीजंस
why we are challenging before this court. ये grounds वाला part जो है ना, ये सबसे important है. This is the most important and significant part in the pleadings. In the writ petition or in the SLP or in the transfer petition, if you tell me what is the important part, मतलब एक ड्राफ्ट्समैन से हमें सबसे important चीज जो निकालनी है ना, that is the grounds part. मतलब what are the grounds of challenge? What are the grounds? What are the reasons that we are before this court? और वो reasons ना हम लिखते हैं A B C D E F, one by one reason, one by one reason. We are challenging this because it is threat to the public health. We are challenging this, it is threat to our life. It is threat to our liberty. It is threat to our neighborhood. It is threat to the cohabitants who are living around. It is threat to a lot of things. We will just mention, we will just tip down one by one the grounds for the challenge, the reasons for the challenge. मैं फिर से कहता हूँ, in pleadings before the Supreme Court, the most important part होता है the grounds, the reasons of challenge. अच्छा, ये ग्राउंड्स में ना और एक चीज आप इम्पोर्टेंटली समझना, वो होता है कि प्रेसिडेंट्स जो जजमेंट्स ऑलरेडी होते हैं ना कोर्ट के, क्योंकि हर एक एरिया के ना, मतलब आप कोई भी एरिया जो भी हम जैसे भी हम चैलेंज करते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, उस एरिया के ना कुछ जजमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि टेक एन एग्जाम्पल दैट देयर इज एन ओवरलोडिंग इशू, हमारे पास प्रॉब्लम है ओवरलोड. इसके एरिया जो है ना, इस एरिया में, मतलब एरिया, आई मीन ओवरलोडिंग इन द motor vehicles, overloading in the vehicles, overloading in the buses, overloading in the cars, overloading on the जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट हैं, इसके कुछ ना कुछ ऐसे जजमेंट्स होंगे, या आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन के जजमेंट्स होंगे, जहां पे ऐसे जजमेंट्स होंगे कि विच विल कवर आवर एरिया. तो वो प्रेसिडेंट वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Firstly, that we have to crystallize, we have to just come clear on the factors. Then afterwards we should know each and every event, कैसे क्या क्या हुआ है. उसके बाद हम फिर आते हैं ग्राउंड पार्ट पे. ग्राउंड्स पार्ट में हम कहते हैं कि why we are challenging this. लेकिन ग्राउंड्स के साथ में कह रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज, वो है प्रेसिडेंट्स. मतलब जजमेंट्स जो पहले होते हैं ना, वो बाइंडिंग होते हैं. देखो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस हैं, सो 2 जजेस बाइंडिंग कोई भी जजमेंट दे, वो सारे हाई कोर्ट्स पे तो ऑब्वियसली बाइंडिंग है ही है. लेकिन अगर कोई 3 जजेस की जजमेंट है, वो 2 जजेस पे ऑब्वियसली बाइंडिंग है. सिमिलरली अगर 5 जजेस की कोई जजमेंट है, वो 3 जजेस के ऊपर बाइंडिंग है. 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट में जनरली 2 जजेस बैठते हैं. मतलब अभी कैपेसिटी है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज 34 जजेस इन टोटल अभी. सो अराउंड 17 कोर्ट्स हैं वहां पे, 17 कोर्ट. मतलब आज अगर आप में से कोई देखेगा 17 कोर्ट्स, हर एक कोर्ट में 2-2 जज बैठते हैं, 2-2 जज. अब हर 2-2 जज इक्वली स्ट्रांग है. मतलब ये नहीं कि कोई सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग है जज, कोई जूनियर जज हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. जज इज जज, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट. तो माई पॉइंट इज कि अगर 2 जजेस का एक जजमेंट है, तो दूसरे 2 जजेस शायद उससे डिसएग्री हो सकते हैं. लेकिन अगर 3 जजेस की जजमेंट है, तो वो 2 जजेस के ऊपर प्रेसिडेंट है. हमने वो डिस्कस, मतलब आपने पढ़ा होगा 141 में, कि वो ऑबिटर डिक्टा एंड रेशियो डिसेंडी. जो भी रेशियो पार्ट होता है ना, रीजनड पार्ट, स्पीकिंग ऑर्डर पार्ट होता है, दैट इज बाइंडिंग. 3 judges judgment will be binding on 2 judges. 5 judges constitutional bench judgment must be binding on the 3. Similarly 7 का बाइंडिंग होगा 5 पे. अगर कभी ऐसा होता है ना, अच्छा कभी ना ऐसा होता है, एक लास्ट ईयर एक जजमेंट आई थी इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में. मतलब कभी ऐसा होता है कि 2 जजेस ने एक जजमेंट दिया और 2 और जजेस ने कुछ और अलग जजमेंट दिया सेम पॉइंट पे. तो ऐसा वाला जो डिस्प्यूट है ना, 2 वर्सेस 2, ये 3 जजेस फिर डिसाइड करें. ठीक है ना.
सो दैट इज हाउ प्रेसिडेंट्स गो। सो हमें देखना होता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमें देखनी होती है कि पुराने क्या जजमेंट है इस एरिया पे। सो मतलब रिसर्च पार्ट जिसको हम कहते हैं, और आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द ड्राफ्टिंग। आई विल टेल यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मतलब थॉरो रिसर्च करना है जजमेंट्स पे। कौन सी जजमेंट रिसेंटली हमारे फेवर में है, कौन सी जजमेंट में हमारे एरियाज के बारे में डिस्कस किया गया है, कौन सी जजमेंट में ये कहा गया है कि हाँ दिस इज अ सीरियस कंसर्न एंड द स्टेट शुड लुक इनटू इट। किस जजमेंट में डायरेक्शन ऑलरेडी, कभी ऐसा भी होता है ना कि ऑलरेडी द कोर्ट हैज गिवन द डायरेक्शन, सो वी हैव टू आल्सो लुक इनटू द प्रेसिडेंट्स जजमेंट्स। उसके बाद जो फाइनली होता है उसको हम कहते हैं प्रेयर पार्ट। प्रेयर होती है मेन प्रेयर, दूसरी होती है इंटर्म प्रेयर। मतलब दिस इज द स्ट्रक्चर आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द रिट पिटिशन। सो फर्स्टली रिट पिटिशन में बहुत सारी चीजें होती हैं इन द रिट पिटिशन। सो जनरली रिट पिटिशन जब हम डिवाइड करते हैं, सो फर्स्टली हम सबसे पहले ऊपर पहले रिट पिटिशन का पहला, द फर्स्ट थिंग इज काज टाइटल। हम टाइटल में पार्टीज को हमें देखनी पड़ती है, पार्टी कौन कौन बनने वाली है रिट पिटिशन। रिट पिटिशन आई विल शेयर इन अ मिनट। एंड देन आफ्टरवर्ड्स पिटिशनर कौन होगा, रिस्पोंडेंट कौन होगा। देन आफ्टरवर्ड्स रिट पिटिशन जब भी हम फाइल करते हैं तो हम ये देखते हैं किस एरिया के रिगार्डिंग, मतलब व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट आर द व्हाट आर द फैक्चुअल पोजीशन, किस फैक्ट्स हैं, क्या रीजंस उस फैक्ट्स के अराउंड हैं, लॉ क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। मतलब रिट पिटिशन में अगर हम हैं, सो वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें दिखाना पड़ेगा कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स जो हमें इस रिट में, जो हमें इस पिटिशन में वायलेट हो रहे हैं। देन आफ्टरवर्ड्स वी डिस्कस फैक्ट्स, सिनॉप्सिस, देन लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। फाइनली हम ग्राउंड्स पे आते हैं। फिर ग्राउंड्स में हम चैलेंज, रीजंस ऑफ चैलेंज, मतलब when we are before the Supreme Court, so we have to very consciously draft these grounds. कौन कौन सा ground है? The grounds can be n number of grounds. इससे हमें ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ये फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ये फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। These are the grounds we are making. Our life is in danger. Our future generations are in danger. It is setting a bad precedent if things are going without any law and order. So we just all dot down one by one in the grounds. बट ग्राउंड्स में मैंने आपको और एक चीज बताया कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रेसिडेंट्स। हम जजमेंट से ऐड करते हैं वहाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पिटिशन में हम सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट से ऐड करते हैं। और हम हमेशा मतलब वी कीप इन मतलब माइंड के, लेकिन जजमेंट जब आप ऐड करोगे ना तो आप एक चीज बहुत कॉन्शियसली, ये तो लोअर कोर्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग में, हमें देखनी होती है कि ये जजमेंट ना, कभी ऐसा होता है ना कि पुरानी जजमेंट को नई जजमेंट ने ओवरटर्न किया। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पुरानी जजमेंट है जिस जजमेंट ने ये कहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है जो हमें अभी पॉलिटिकल सिस्टम में चल रहा है इंडिया में वो ठीक है, लेकिन अभी जजमेंट आ गया है इसी मंथ में कि नहीं दिस इज रॉन्ग। सो हमें मतलब ये ध्यान रखना है कि क्या कोई पुरानी जजमेंट जो हम कोर्ट कर रहे हैं, क्या उसको ओवरटर्न तो नहीं किया गया है। मतलब जनरली ना आप ऐसे देख लेना, मतलब होता ये है जब वो मोट कोर्ट बनाते हैं ना, उस मोट कोर्ट में ना ऐसे जजमेंट्स यूज होती हैं, वो होते हैं 90 40 30 50 60, पता नहीं कहाँ कहाँ से होता है। वो होते हैं हाई कोर्ट, पता नहीं मैसूर, वो एग्जिस्ट ही नहीं होता है कहीं पे। वो ऑलमोस्ट 50% होते हैं ओवरटर्न जजमेंट्स। हाँ, अगर रेशियो कभी ऐसा होता है ना, रेशियो डिसेंडिंग which is really helping us out, so we just put it like this. So once we are finding the judgments in the pleadings, in the drafting, so important point and very consciously that we have to keep in mind is that we should also look that कि ये ओवरटर्न तो नहीं हुई है जजमेंट्स। और सबसे अच्छी जजमेंट होती है देयर इज अ रीसेंट वन, कि अभी लॉ ये है।
कभी ना ऐसे भी होता है, आप इसको समझ लेना, लॉ विथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज भी होते हैं, नॉट ऑन एवरी एस्पेक्ट बट देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स where we will find that there is a new growth in law, that there is a change in law. So if you're finding and figuring out the judgments which are very recent one, then it is always beneficial. Anyway, so finally there is a prayer in a writ petition, and the prayer will be that what we are seeking. अच्छा, दो तरह के प्रेयर होती हैं, एक होती है फाइनल प्रेयर, सेकंड होती है इंटर्म प्रेयर. समझ आ रहे हैं ना? या आपने समझा होगा. वन इज द इंटर्म प्रेयर, दैट इज इमीडिएटली वी आर सीकिंग. मीनवाइल, जब तक फाइनली कोर्ट पूरा फाइनल जजमेंट देगा तब तक हमें कुछ रिलीफ दे दो, दैट इज द इंटर्म प्रेयर. सेकंड प्रेयर इज द फाइनल प्रेयर, that is the main prayer that we are seeking, that finally when you are going to dispose of this case, what is the important thing that we are getting out of this. So this is generally how we file writ. और अगर आपके पास PIL है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आपको पिटिशनर की पूरी इंफॉर्मेशन देनी है. अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL फाइल करता है ना, उसको आपका डिटेल, उसकी एज, उसका इनकम इनकम भी दिखाना है आपको. अगर इफ यू आर फाइलिंग दिस PIL बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, यू हैव टू शो इनकम. आपको शो करना है कि मतलब आप मतलब व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, यूर आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी स्टैंडिंग क्या है, मतलब व्हाई यू आर फाइलिंग दिस. क्योंकि आपने देखा होगा ना, बहुत से PILs मिसयूज हुए हैं. तो उसके बाद क्या हुआ है कि नाउ कोर्ट्स आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दीज PILs. तो पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब रजिस्ट्री तब तक आपका PIL ही नहीं लेगी जब तक आप उसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे कि हम इस PIL में जो पिटिशनर है उस पिटिशनर का क्या डिटेल है, मतलब उसका इनकम क्या है, उसकी कौन कौन सी क्या क्या इंफॉर्मेशन है. सो वी हैव टू गिव ईच डिटेल्स. उसके बाद ही फिर बाकी चीजें हम लिखते हैं कि मतलब व्हाट आर द फैक्ट्स दैट वी आर फाइलिंग दिस केस, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन. PIL में हम ये भी लिखते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब होता ये है ना कि मतलब जनरली जब हम बाकी रेट फाइल करते हैं तो जिस पर्सन का कोई भी ग्रीवेंस होता है वो आता है, लेकिन PIL में कोई भी आ सकता है. तो उस कोई में भी आने का उसमें ये होता है कि उसको ना आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना है. Where from you are getting this information, the source of information is this. So this is about writ. Now the second thing is that is the special leave petition. रिट के बारे में किसी को कुछ पूछना है? रिट पिटिशन. हाँ. सर आई वाज आस्किंग कि अगर PIL कोई फाइल करता है तो उसकी इनकम क्यों जरूरत होती है देने की सर? बिकॉज वो तो किसी के फंडामेंटल राइट या पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज के उसके बिहाफ पे ही देता है. हाँ. तो क्वेश्चन ये है कि if somebody is filing the public interest litigation, so why should he disclose income? देखो, इसका ना हमें दो चीजें मैं बताऊंगा. there are two fold answer. The first thing is that being transparent is a good thing. If you are giving information, there is nothing wrong. Even if we will not accept this, that why should we give the information? क्यों ही दे दें हम? सेकंडली आपको ये भी देखना है कि बहुत सारे ऐसे PILs फाइल हुई है, जिन PILs में मैं आपको एक PIL का नाम बताऊंगा. वो PIL पता क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा. जो जब DY चंद्रचूड़ जो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस है, इसके खिलाफ एक PIL है, उनको हटा दो. हाँ. तो कुछ PIL इसी, अभी एक PIL आ गया जनवरी में, जनवरी 2024 में, पिछले महीने. पता है PIL क्या थी? आर्टिकल 21 को हटाओ. ये पिछले जनवरी 20, मतलब यू कैन राइट इट इन द एग्जाम in 2024 that the PIL was filed, and what was the prayer in the PIL? 21 को हटाओ, आर्टिकल 21 को. गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से था क्या सर ये PIL? नहीं नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा. सम प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट इंसान आ गया, कह रहा है इसको हटा दो. रीजन क्या है? कह रहे हैं कि नहीं, मतलब लाइफ क्यों ही दे दे, गारंटी क्यों ही दे, मतलब ऐसे, मतलब आप समझ नहीं सकते हो. कोई PIL कभी आता है कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को हटाओ. कोई PIL कोई आता है वो कहता है कि
नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। कोई कहता है हिंदी नहीं, कोई तमिल होनी चाहिए, मराठी होनी चाहिए। मतलब हर तरह का होता है, एवरी मतलब हर एक तरह का एक मतलब माइंड सेट है हमारी कंट्री में। तो कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं किताबों को चेंज करो। मतलब यू विल फाइंड सो मेनी पीआईएल, सो मेनी ऐसे ऐसे पीआईएल होते हैं ना। पीआईएल ये होते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, कभी स्कूल ही नहीं जाएंगे। ऐसे भी पीआईएल आया एक हाई कोर्ट में। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट दैट कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इज ही नॉट फंडेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ही इज क्रिएटिंग। क्योंकि इससे ना मैं आपको बताऊंगा, एक पर्सन था, उसने एक पीआईएल फाइल किया था कहीं पे कि जो एक रिलीजियस स्क्रिप्ट है ना पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का, उसको उसको बैन करो। उसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत एनिमोसिटी हो सकती है या बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है। मतलब इफ यू आर जस्ट प्रोजेक्टिंग वन पर्सन, वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ए बी सी के खिलाफ या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ फाइल करते हैं पीआईएल। कुछ लोग आप देखोगे वो सिर्फ पीआईएल ही फाइल करते हैं। इसलिए ये चीजें लाई गई हैं कि आप अपना इनकम दे दो, आप अपना इंफॉर्मेशन बता दो। मतलब आर यू सीरियसली समवन हु इज वर्किंग फॉर द पब्लिक, और यू आर समवन हु इज क्योंकि कुछ पीआईएल ऐसे भी होते हैं ना। एक पीआईएल आई एक जगह एक हाई कोर्ट में, मतलब मैं आपको एग्जांपल बताऊं। पीआईएल पता क्या थी कि कहीं पे किसी एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन होते थे, बहुत सारी बिल्डिंग, 50-60 बिल्डिंग। पीआईएल फाइल हुई है कि ये इलीगल बिल्डिंग है सारे, इनको हटवा दो। और वो आगे बिल्डर्स से कह रहा था वो बंदा, या तो मुझे फ्लैट दे दो या तो मैं पीआईएल फाइल करूंगा। उसको अपने लिए प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो पीआईएल लेके चला दिल्ली हाई कोर्ट में। मतलब वी हैव डाइवर्स पीपल इन अवर कंट्री, बहुत बहुत ज्ञानी लोग हैं, तो कुछ भी होता है। सर, तो बेसिकली मोटिव बिहाइंड द पीआईएल को फाइंड करने के लिए हम इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं अपना। हाँ, मतलब वी फाइंड मतलब इनकम ओनली इन ऑर्डर टू नो दैट वी आर द बोनाफाइडी। हम किसी अदर पर्पस से नहीं है यहाँ पे। वी डोंट हैव द अल्टीरियर मोटिव, वी डोंट हैव समथिंग टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट ए बी और सी। We are seriously serving to the people. We are working for the poor. We are working for the marginalized group. We are working for the मतलब लेबर ग्रुप, मतलब ऐसे जो सीरियसली लगे हाँ कंसर्न है। We are working for the public health, public importance, public welfare. So that is the criteria. Sir, बाकी any किसी punishment is given? हाँ एनी Or हाँ अच्छा इम्पोर्टेंट, हाँ अच्छा सवाल आपने पूछा। punishment क्वेश्चन is given like क्वेश्चन हाँ हाँ अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फ्रिवलसली फाइल करे ना पीआईएल, क्या उसका कोई पनिशमेंट है क्या? तो पनिशमेंट क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट सुनती है ना, तो उनको ना कॉस्ट इम्पोज किया जाता है। क्या 50,000 कॉस्ट, 1 लाख कॉस्ट, 2-2 लाख भी कॉस्ट दिया जाता है। तो देयर इज पनिशमेंट बाय वे ऑफ इम्पोजिंग कॉस्ट। कभी हेवी कॉस्ट्स भी इम्पोज किए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ना एग्जम्पलरी कॉस्ट्स। मतलब कभी कुछ ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर कोई इंसान है, वो बार बार पीआईएल फाइल करता है, इसी से मेरा नाम चलेगा, जिसको ना मैं कहता हूँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट देखती है कि ये बार बार आता है सिर्फ वो अपना राजनीति करने के लिए, तो फिर वो लगता है इनको कि हाँ कि ये बहुत गलत मतलब मिसयूज कर रहा है इस प्रोसेस का। तो फिर वो एग्जेम्पलरी कॉस्ट्स इम्पोज किए जाते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, डिपेंड। मैंने तो एक को देखे 25 लाख भी कॉस्ट इम्पोज होते हुए। So there is check and balance also. There is punishment also if somebody would like to misuse this process. हाँ, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर बी फ्री। हाँ हाँ, मतलब किसी को कोई भी क्वेश्चन है, बी फ्री, हमारे पास टाइम है, तो आप सर बहुत आराम से पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन हो। इवन आउट ऑफ टॉपिक भी होगा ना, तो आप जस्ट जस्ट बी हियर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ सर कोई और पूछ ले फिर। हाँ हाँ प्लीज। सर आपने इंदौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे, उसमें इंदौर अभी प्रेजेंट डेवलपमेंट स्टेटस, अथॉरिटी का केस। हाँ, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो उसमें अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है उसका?
वो डिसाइड हुआ, वो मतलब एक मैटर था, वो लैंड एक्विजिशन पे था। हाँ वो वो मैंने पढ़ा हुआ है सर। हाँ हमारे पास भी एक केस आया था फर्म में, उसमें काफी सारे मैटर्स क्लब थे, तो हाँ उसमें करेक्ट मैं करेक्ट। बस पूछ रहा था आपसे प्रेजेंट स्टेटस, हाँ आप उससे वो फेमिलियर डिसाइड हो हो गए हैं। गया, वो डिसाइड हुआ। एक जस्टिस थे, जस्टिस अरुण मिश्रा जी, ही वाज हेडिंग द 5 जजेस बेंच, 5 जजेस के बेंच ने उसको डिसाइड किया, वो डिसाइडेड है, दैट इज डिसाइडेड नाउ। ओके सर। सर हाँ हाँ डाउट डाउट मेरा ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को सो मोटो के थ्रू लेती है, हाँ। तो उसमें पार्टीज कौन कौन सी होती हैं सर? दोनों पार्टी कौन सी होती हैं अगर सो मोटो कोर्ट लेता है? जब सो मोटो हम लेते हैं ना, हाँ सर। तो उसमें पहली पार्टी तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ही है। मतलब सो मोटो में, सो मोटो मतलब जब हम खुद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने साइड से, अपने तरह से कोई भी सो मोटो ले सकते हैं। दूसरी तरफ से होते हैं वो कंसर्न गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब हमें लगे कि हाँ ये स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, ये डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये पर्टिकुलर मतलब जो भी हो डिपार्टमेंट, उसको हम रेस्पोंडेंट्स बनाते हैं, उसको एक नोटिस जाता है कि हम इस चीज पे, इस रीजन पे हम सो मोटो लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब कोविड-19 आया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो लिया था, तो उसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पार्टी बनाया था, तो क्योंकि वही थे ना जो आंसर दे सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू सीक आंसर्स रिगार्डिंग द कोविड-19, what is the planning, how would you like to take care of the patient, is what is, you know, the hospital arrangements going on, what is the preparation is going on, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट वही हेल्थ डिपार्टमेंट ही होगा, तो उसको हम हाँ। So basically Supreme Court can be a party in the suo moto cases. सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट करती है, मतलब इट Yes. ऑलवेज इनिशिएट्स, इट इज द फर्स्ट you know one that initiates the process, then फिर वो respondent parties होती हैं, so they have to give the answers. Anyone has any बाकी questions? जी मैम। Any more students has more questions? If anyone has more हाँ हाँ questions. प्लीज प्लीज प्लीज, अभी आप पूछ तो जितना पूछना है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इनफैक्ट, and I would really appreciate if you are going to ask more questions. I think, you know, I always believe that this is a bilateral process. I can discuss a lot of things regarding the drafting, litigation and all these things, but मेरे को ना अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे, I will give you answer to that specific thing. तो इसलिए आप जितने सवाल हैं, चाहे टॉपिक पे हो बिना टॉपिक के हो, आप पूछ लो, और बिना डरे हुए, घबराना नहीं है, तो बस पूछना है। Yes, students. I think there are no more questions by the students. So on that note, I would like to thank you, sir, on the behalf of FIMT School of Law. I would like to extend my sincere gratitude for taking the time to deliver such an insightful and inspiring lecture. We greatly appreciate the time and effort you dedicated to preparing and delivering such valuable lectures. My pleasure always, and seriously, I would like to help all those who are there in any way, and whenever they need any type of assistance regarding whatever in future or whenever, so please be free and always available. With this, I will tell you, God bless all of you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, students, I have shared the feedback form as well.